Hello students, here we are starting new lesson, that is lesson number 6. Name of the lesson is indices. Let us recall activities there. Each of 7 children was given 4 books. Total how many children are there? 7. Okay, every child is given how many books? 4 books. Okay, then how it will be written? So total notebooks, how many? 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. Okay, these such type of addition will have to take how many times? 7 times, because 7 children are there. Okay, when we add these 4s which are taken 7 times, okay, 4 plus 4 8 plus 4 12 plus 4 16 plus 4 20 plus 4 24 plus 4 28. Okay, and then in this way we get the answer. 28 notebooks are given to 7 children. Alright? Okay, even in the picture also same thing is given. Now here addition is the operation that is carried out repeatedly. Okay, तो ये सब पूरा कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? We had to do addition of all the books. हर एक बच्चे को कितने कितने बुक्स दिए वो सारा एडिशन करना पड़ा. ओके, देन एडिशन ऑफ द सेम नंबर अगेन एंड अगेन कैन बी शोन एज अ मल्टीप्लीकेशन. तो इस बात पर सोचा गया कि इसके लिए कोई शॉर्टकट मेथड है क्या? तो है, मेथड है. ओके, दैट वी कैन शो इट और वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ओके, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अब देखो, total how many notebooks? Okay, every child is given 4 notebook. Okay, total how many children are there? 7. So 7 times we have taken addition of 4. इसका मतलब क्या है? Total 4 notebooks are given to 7 children. Okay, and every child is given 4 notebooks. Then why not to multiply it with 7? Okay, अगर हर एक बच्चे को 4 नोटबुक दी है, अगर ऐसे 7 बच्चे हैं तो 4 multiplied by 7, that way also we get answer 28. So instead of doing all this addition this many times, okay, यहाँ पर ठीक है, here only 7 times it is given. It's okay, we can do it. Suppose if it is more than 100, 200, 500, if it is in thousands, then what we can do? Are we going to add it that many times? So it will become a very tedious job. Okay, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन, टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी. तो शॉर्ट मेथड 4 multiplied by 7 is equal to 28. We got it. We got the answer in short, right? The next, let us learn activity. Activities there. Okay. The name of the point is base and index. Okay. अब एक छोटी सी बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है. बेस यानी सबको बेस तो मालूम ही होगा, जो सबसे नीचे होता है. इंडेक्स यानी कहीं ऊपर होता है, जो कुछ तो भी इंडिकेट करता है, राइट? एंड बेस जो उसका दिखाता है कि वो व्हाट इज इट. ओके, इंडेक्स दिखाता है कि वो कुछ तो भी इंडिकेट करता है. सो दिस बेस एंड इंडेक्स वी आर गोइंग टू लर्न इन मैथ्स. हाउ, व्हाट इज इट? Let us see how the multiplication of a number by itself several times is expressed in short. Okay, ये जो मल्टीप्लीकेशन लेते हैं किसी भी नंबर का, okay, जैसे ये एडिशन लिया, okay, ये एडिशन was taken 7 times, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है? 4 multiplied by and how many times it is, then that we get it. Okay, the same way अगर एडिशन के लिए शॉर्टकट है तो मल्टीप्लीकेशन के लिए भी कुछ तो होना चाहिए. ओके, एडिशन के लिए शॉर्टकट मल्टीप्लीकेशन का है, मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या है? दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस. ओके, नाउ हियर 2 इज मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स. ओके, हियर 2 इज मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स it multiplication is taken. Okay, then such type of multiplication, in short, it is written as 2 raised to 8. 2 raised to 8, नहीं तो इसको 2 raised to power 8. Here down side it is given, that time we are going to say. लेकिन ये नीचे 2 लिखा जाता है, उसके सर पर यानी राइट साइड के अपर कॉर्नर में 8. हाउ मेनी टाइम्स दैट मल्टीप्लीकेशन इज टेकन, दैट नंबर इज रिटन देयर. This is the index form of multiplication.
और इसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन का इंडेक्स फॉर्म. ओके, यर 2 इज कॉल्ड द बेस. देखो ये जो नीचे नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं? बेस. ओके, एंड 8 द इंडेक्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपोनेंट. ओके, तो ये एक्सपोनेंट वर्ड ज्यादा कोई यूज करता नहीं है. ज्यादातर कौन सा वर्ड यूज होता है? दैट इज इंडेक्स. ओके, सो रिमेंबर बेस एंड इंडेक्स. हियर राइट साइड इट इज गिवन 2 इज कॉल्ड द बेस, 8 इज कॉल्ड द इंडेक्स. जो नीचे लिखा जाता है दैट इज बेस, जो ऊपर लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड द इंडेक्स. नाउ हियर वन मोर एग्जांपल इज गिवन. 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5. 4 times multiplication is taken 5. ओके, तो यहां पर कौन से नंबर का मल्टीप्लीकेशन लिया है? 5 का. तो 5 बना बेस. हाउ मेनी टाइम्स इट इज टेकन? 4 times. द 4 became index. ओके, सो 5 raised to 4 is in the index form. राइट. नाउ इन द नंबर 5 raised to 4, ये जो 5 raised to 4 है इसमें 5 इज द बेस एंड 4 इज द इंडेक्स. जो नीचे लिखा है 5 वो क्या है? बेस. जो ऊपर लिखा है वो दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्स. दिस इज रेड एज 5 raised to power 4. इसको कैसे पढ़ा जाता है? नाउ सपोज दिस 2 raised to power 8. ओके, 5 raised to power 4. राइट, यहां पर बोलेंगे 2 raised to power 8. दिस वे इट इज रेड. और 5 raised to 4, पावर वर्ड यूज नहीं किया तो भी चलता है. ओके, एंड जनरली दिस इज यूज्ड. ये यूज किया जाता है जनरली. ओके, एक शॉर्ट 5 raised to 4, 2 raised to 8, 5 raised to 4, 2 raised to 8. In this way reading is done. Generally most of the teachers, at many of the places this only it is followed, this wording. क्या शॉर्ट है इसलिए ये यूज किया जाता है. और तीसरा एक ऑप्शन है, और द 4th पावर ऑफ 5. 5 का कौन सा पावर? 4th पावर. 5 का 4th पावर, 2 का 8th पावर, 2 का 8th पावर, 5 का 4th पावर. ओके, इन दिस वे इट इज रेड. Okay, here 3 options are there to read. 5 raised to 4, नहीं तो 5 raised to 4, 5 raised to power 4, 5 raised to 4, और the 4th power of 5. सबका मीनिंग एक ही होता है. So generally if a is any number, अगर a कौन सा भी नंबर है जो बेस में आता है, and if it is multiplied how many times? m times, then it is called as a raised to m. Okay, read a raised to m as a raised to power m, or the mth power of a. Here m is a natural number. ओके, लेकिन ये m कैसा चाहिए? नेचुरल नंबर चाहिए. यहां पर इंटेजर नहीं चलेगा, रैशनल नंबर नहीं चलेगा. ओके, लेकिन ये m कौन सा होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए. ओके, तो नेचुरल नंबर में ही मल्टीप्लीकेशन होगा ना नंबर का. ओके, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर विच वी से काउंटिंग नंबर्स. ओके, उसमें मल्टीप्लीकेशन होगा. ऐसा तो नहीं ना 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5. ओके, वो अलग बात है वो. ओके, सो देयरफॉर 5 raised to 4 का मतलब क्या है? 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5. ऐसा 4 बार 5 का मल्टीप्लीकेशन लेना पड़ता है, जिसका आंसर मिलता है 625. राइट, मल्टीप्लीकेशन करके देखो. 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625. ओके, और नहीं तो इसको क्या बोलेंगे? और द वैल्यू ऑफ 5 raised to 4, ये 5 raised to 4 की वैल्यू क्या है? 625. ओके, सिमिलरली अब देखो, अभी अगर ये निगेटिव नंबर का अगर दिया है तो क्या करना है? ओके, यहां पर देखो रैशनल नंबर यूज किया है. ओके, -2/3 and bracket raised to 3. राइट, तो माइनस ये यहां पर बेस कौन सा हो गया? -2/3 इज द बेस एंड 3 इज द इंडेक्स. करेक्ट. तो -2/3 का मल्टीप्लीकेशन हाउ मेनी टाइम्स विल हैव टू टेक?
3 टाइम्स, 3 बार लेना पड़ेगा। देखो -2/3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड इट्स आंसर। अब इंटेजर का मल्टीप्लीकेशन तो हमने पढ़ा है, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, आंसर में ये मिलेगा +4। ओके, +4 मल्टीप्लाइड बाय -2, आंसर वी गेट -8। ओके, ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है हमने, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटेजर्स। ओके, सो आंसर वी गेट -8। राइट, द सेम वे 3 3 जा 9, ये तो सारे पॉजिटिव है। ओके, 9 3 जा 27, देन वी गेट आंसर 27। सो द फाइनल आंसर इज -8/27। ओके, मीन्स इसका मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ -2/3 रेज टू 3 यहां पर दिया है, -2/3 रेज टू 3 इज -8/27। राइट, नोट दैट, यहां पर एक ध्यान में रखने वाली बात उन्होंने क्या दी है, नोट दैट 7 रेज टू पावर 1, अगर किसी भी नेचुरल नंबर का पावर अगर 1 होता है, ओके, किसी भी बेस का पावर अगर 1 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, बस वो नंबर खुद। ओके, क्योंकि 7 का मल्टीप्लीकेशन हाउ मेनी टाइम्स इट इज टेकन, 1 टाइम, सो 7 1 जा 7। ओके, उसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है तो 1 ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 रेज टू पावर 1, इट इज 10। ओके, देन द फर्स्ट पावर ऑफ एनी नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का फर्स्ट पावर यानी रेज टू 1 अगर होता है तो उसका आंसर क्या होता है, वो नंबर खुद होता है। If the power of index of a number is 1, the convention is not to write it. Okay? अगर पावर 1 है, so suppose 7 raised to power 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं, just only you write 7. Okay? ये समझने वाली बात है, it is just understood that it is 7 means what? 7 raised to power 1. Okay? Thus 5 raised to 1 means 5. A raised to 1 means A. ओके, तो रेज टू पावर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर उसका पावर 1 है तो पावर लिखने की जरूरत नहीं। नाउ लेट अस मूव टू प्रैक्टिस सेट नंबर 26। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन, कंप्लीट द टेबल बिलो। ओके, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है। पहले टेबल के हेडिंग्स देखते हैं। यहां पर सीरियल नंबर, इंडाइसेस, बेस, इंडेक्स, उसका मल्टीप्लीकेशन फॉर्म और उसकी वैल्यू। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 इज सॉल्व 3 रेज टू 4। उसका इन दिस इंडाइसेस बेस क्या है 3, इंडेक्स क्या है 4। ओके, इसका मीनिंग क्या है, 3 का मल्टीप्लीकेशन लिया है कितने, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। सो 3 1 2 3 4 टाइम्स इट इज टेकन। ओके, एंड उसकी वैल्यू क्या है, सो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 is the answer. Right? Now, second example is given, 16 raised to 3. In this, what is the base? Base नीचे वाला नंबर कौन सा है, 16. ओके, इंडेक्स फॉर्म में क्या दिया है, 3. ओके, अब इसका ना मीनिंग क्या है कि 16 इज मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स. ओके, then the value of this 16 multiplied by 16 multiplied by 16. Okay, answer is 4096. ये मैंने पहले कैलकुलेशन करके रखा था. ओके, सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली. ओके, आंसर इज 40. ये करके देखो, 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाई उसका जो आंसर मिलेगा उसको 16 से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल गेट 4096. द सेम वे नाउ सी थर्ड एग्जाम्पल. यहां पर इंडाइसेस हमें लिखना है. ओके, बेस दिया है, व्हाट इज द बेस, -8, तो लिखो -8. अब अगर -8 लिखना है तो उसको ब्रैकेट देना पड़ता है क्योंकि उसको साइन है ना, माइनस साइन. इंडेक्स क्या दिया है 2, तो 2 लिखो ऊपर. करेक्ट हो गया. देन नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन फॉर्म. व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, बेस कौन सा है, बेस -8. कितनी बार मल्टीप्लीकेशन लेना है, 2 टाइम्स. सो -8 मल्टीप्लाइड बाय -8. ओके, अब देखो नेगेटिव नंबर है.
ओके, नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन लेना है. हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स. सो दैट नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन इट विल बिकम पॉजिटिव. ओके, तो आंसर का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव. यानी 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 आंसर 64. तो वो पॉजिटिव साइन देने की जरूरत नहीं है. आंसर इज +64. ऐसा बोल सकते हैं +64, लेकिन लिखते वक्त सिर्फ 64 लिखो. दैट इज ओनली मीनिंग +64. राइट. एग्जाम्पल नंबर 4. अब तो यहां पर इंडाइसेस लिखना है, बेस लिखना है, इंडेक्स लिखना है. ओके, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म दिया है. ओके, फ्रॉम दिस वी कैन राइट मल्टीप्लीकेशन. ये बेस का ही मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि बेस क्या है? 3/7. राइट. हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लीकेशन इज टेकन? 4 टाइम्स. सो बेस इज इंडेक्स इज द 4. What is the index? 4. And write it in the form of indices. So 3/7. अब ये दोनों का भी पावर है ना, तो इसलिए ब्रैकेट करना पड़ता है उसको. ओके, अगर ब्रैकेट नहीं किया तो वो पावर किसको जाएगा? ओनली टू 3. 7 का नहीं रहेगा. ब्रैकेट दिया मतलब ये 4th पावर किसका है? ये 4th पावर किसका है? 3 का भी है, 7th का भी है, 7 का भी है. राइट. देन मूव टू एग्जाम्पल नंबर 5. -3 ब्रैकेट रेस टू 4. इसमें बेस क्या है? -13. ओके, इंडेक्स क्या है? 4. मल्टीप्लीकेशन फॉर्म इसका -13 मल्टीप्लाइड बाय -13 मल्टीप्लाइड बाय -13 मल्टीप्लाइड बाय -13. ओके, अगर ये 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 13, हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स. ओके, तो अगर ये 4 बार मल्टीप्लीकेशन है निगेटिव का, तो साइन लास्ट में आंसर को साइन कौन सा रहेगा? अब देखो, ये निगेटिव मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया. ये निगेटिव मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया. पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आता है, तो आंसर का साइन कौन सा रहेगा? पॉजिटिव. ओके, तो हमें अब क्या लिखना है? ओनली वी हैव टू राइट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 13. सो 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 13. ओके, मैंने कैलकुलेशन करके रखा है. पहला आंसर इज 28,561. ओके, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है. फाइंड द वैल्यू. यहां पर ऊपर दिया जाए, हमने वैल्यू फाइंड आउट की ना, ऐसे ही वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी है. ओके, लेट अस सी दीज एग्जांपल्स इन नोटबुक. सो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू. फर्स्ट एग्जांपल इज 2/10. इसका मतलब क्या है? 2 का मल्टीप्लीकेशन लेना है. हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 टाइम्स. बस इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसका आंसर लिखना है. ओके, तो 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 ये ऐसा पूरा मल्टीप्लीकेशन करते जाना है. ओके, लास्ट में इसका आंसर मिलता है 1024. राइट. लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 2. 5/3. 5/3. ये रेस टू यानी ये जो पावर लिखते हैं वो ये ठीक तरह से देखो, राइट साइड का ऊपर का कॉर्नर. ओके, नीचे का ही नहीं होना चाहिए. अब देखो, मैं यहां पर लिख कर बताता, ऐसे लिखना नहीं, ऐसा नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं तो इट विल लुक लाइक 53. ओके, ये रॉन्ग है. ओके, नहीं तो ज्यादा कहीं ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, एग्जैक्टली बराबर राइट साइड अप साइड कॉर्नर. ओके, देन 5/3 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है? बेस क्या है? 5. तो 5 का मल्टीप्लीकेशन हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5. And what is the value? 5 5s are 25. 25 5s are 125 is the answer. Alright. Let us move to third example. Third example is -7/4. -7/4. We can also say power 4 or 4th power of -7. Right, is equal to, what is the meaning of this now? Write it in multiplication form. -7 का मल्टीप्लीकेशन लेना है. हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स. ओके, 3 4. राइट.
अब देखो ये निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन का मल्टीप्लीकेशन हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 यानी इवन नंबर है, तो आंसर का साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, आंसर का साइन पॉजिटिव। ओके, अब 7 का मल्टीप्लीकेशन 4 टाइम्स, आंसर उसका 2401 है, मल्टीप्लीकेशन करके देखो। ओके, एंड ये निगेटिव साइन 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन आता है। ओके, हमेशा ध्यान में रखो, अगर ये निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन का अगर 2 बार मल्टीप्लीकेशन आता है तो वो पॉजिटिव होता है, 3 बार आता है तो निगेटिव, 4 बार मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है तो वो पॉजिटिव होता है फिर से, राइट। देन मूव टू एग्जांपल नंबर 4, इट इज -6 raised to 3, -6 raised to 3। ओके, अब यहां पर निगेटिव साइन का मल्टीप्लीकेशन आया है 3 टाइम्स। ओके, सो -6 मल्टीप्लाइड बाय -6 मल्टीप्लाइड बाय -6। ओके, अब ये निगेटिव साइन का मल्टीप्लीकेशन हाउ मेनी टाइम्स इट इज, 3 टाइम्स, यानी ये कौन सा है, ऑड नंबर है, तो आंसर का साइन क्या आएगा, नेगेटिव, राइट। 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, right? So our answer is -216. Move to example number 5. It is 9 raised to 3. 9 raised to 3. Means what is the meaning? 9's multiplication we have to take how many times? 3 times. करो multiplication. 9 9s are 81. 81 9s are 729. Then example number 6, 8 raised to power 1। हमें मालूम है अगर किसी भी नंबर का पावर अगर 1 होता है तो उसका आंसर क्या होता है, वो नंबर खुद, बस, दैट्स ऑल। देन नंबर 7, 4/5 पावर रेस टू, उसकी पावर कितनी है, 3। ओके, यानी पावर 3, यानी इसका मतलब क्या है, 4/5 का मल्टीप्लीकेशन हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू टेक, 3 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। ओके, अब इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, अब देखो, नाउ वी हैव लर्न मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, तो यहां पर न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन अपॉन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन, 4 multiplied by 4 multiplied by 4, answer is 64। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, upon 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो डिनोमिनेटर में आता है 125। दिस इज आवर फाइनल आंसर। देन कम टू एग्जांपल नंबर 8, इट इज -1/2 पावर रेज टू 4। What is the meaning of this? -1/2 का multiplication how many times we have to take? 4 times. How many times? 4 times. Okay. अब देखो, नेगेटिव साइन का मल्टीप्लीकेशन हाउ मेनी टाइम्स इट इज, 4 टाइम्स, तो आंसर का साइन कौन सा रहेगा, पॉजिटिव। ओके, अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन 1 multiplied by 1 multiplied by 1 multiplied by 1, कितनी भी बार मल्टीप्लीकेशन करो 1 का, आंसर तो 1 ही आता है। देन 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, सो आंसर इज 1/16, साइन पॉजिटिव, राइट। ओके, so here in this exercise only, in this practice set only 8 examples are there. Okay, all these 8 examples are solved. Let us move to the next point, square and cube. Okay, for this square and cube I will come with the separate video. Okay, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दोनों भी लेने हैं इसमें। Okay, so I think we should stop here. Okay, I will come with the new video.